Yadav, Director, Directorate of Tourism. Let's all welcome them with a huge round of applause once again. And इसी के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि और अतिथि गणों से मैं अब अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन कर with the ceremonial lamp lighting. Let's all inaugurate our today's program and seek the blessings of the Almighty. Thank Him for a new day of learning. We'd also like to extend our heartiest welcome to the Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren. I will request Dr. Amitabh Kaushal, the Secretary Department of Tourism, to kindly welcome the Honorable Chief Minister with a plant sapling. अंक में आज हम बात करेंगे फाइलेरिया के कारण, लक्षण व इससे जुड़ी चिकित्सा सेवाओं के बारे में। हर जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रही हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन। आपको भी जोहार चंपामणि दीदी। अपने श्रोता भाई बहन से सीधे जुड़ते हुए हम यही बताना चाहते हैं कि फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा। The Honorable Development Commissioner, Government of Jharkhand, to Shri Rajiv Arunekha, the Principal Secretary to the Chief Minister. I'll also request you to present a plant sapling to Shri Mastram Meena, the Resident Commissioner, Jharkhand, and Shri Vinay Kumar Chaube, Secretary to the Chief Minister. Well, thank you. Without any further ado, let me now request Srimati Anjali Yadav, Director Tourism, Government of Jharkhand, to kindly give the welcome address. आप सभी को जोहार। On behalf of Department of Tourism, Art, Culture, Sports and Youth Affairs, Government of Jharkhand, it is my privilege to extend a very warm welcome to our Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, as the chief guest on the occasion of launch of Jharkhand Tourism Policy 2021. Our Honorable Chief Minister, in his illustrious political career, has constantly championed the cause of promotion of tourism by highlighting to the world the treasure trove of Jharkhand's exquisite mountains, adventurous forest, boosting of rare and beautiful flora and fauna, unique waterfalls, and religious tourism. He has always been a source of inspiration and guidance for us, and he was a pillar of strength and a guide while formulating this policy. We are blessed indeed to have such an inspiring leader amongst us. I am also very happy to greet our Development Commissioner, Shri Arun Kumar Singh, Principal Secretary to CM, Shri Rajiv Arunekha, Resident Commissioner, Jharkhand Bhavan, Shri Mastram Meena, Secretary to CM, Shri Vinay Kumar Chaube, Secretary Tourism, Dr. Amitabh Kaushal, Director Industries, Shri Jitendra Kumar. Their brilliance, insight and encouragement has been a guiding light for all of us in Jharkhand. Without their guidance and leadership, this event would not have been possible at this scale. Thank you so much, sir. I welcome all the delegates who have joined us from the tourism industry, and hopefully this event will make sure that it gives you a new perspective to the divinely beautiful Jharkhand and its pristine beauty which is still untouched. I would like to express my department's happiness at having participants from FICCI and Outlook. Last but not the least, I also extend my warm welcome to the representatives from media and the press. Thank you very much. Well, thank you very much, Srimati Yadav.
And now it's time for me to invite Dr. Amitabh Kaushal, the Secretary, Department of Tourism, Art and Culture, Sports and Youth Affairs, Government of Jharkhand, to kindly present an overview of the State Tourism Policy 2021. Let's all welcome him, everybody. आज यहाँ झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 के लॉन्च के शुभ अवसर पर उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव सह गृह सचिव झारखंड के श्री राजीव कुमार एक्का सर, मंच पर उपस्थित रेजिडेंट कमिश्नर झारखंड भवन श्री मसराम मीना सर, यहां पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव सह शहरी विकास सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री जितेंद्र कुमार सिंह, डायरेक्टर टूरिज्म श्रीमती अंजलि यादव, यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, फिक्की के सभी पदाधिकारी, सभी मीडिया बंधु भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, आज हम लोग यहाँ पर झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 के लॉन्च के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ और स्टेट की तरफ से सबको जोहार। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है झारखंड में टूरिज्म का पर्सपेक्टिव और जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। झारखंड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कई सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ आपके सामने रखे गए हैं। पहला है टोपोग्राफी। झारखंड में अनड्यूलेटिंग टेरेन है, छोटे छोटे हिल्स हैं, फॉरेस्ट कवर है, लगभग 30% हमारा फॉरेस्ट कवर है। इस अनड्यूलेटिंग टेरेन की वजह से कई सारे डैम्स हैं, जिनकी वजह से कई सारी आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज हैं, साथ ही नेचुरल वाटर बॉडीज भी हैं। और आपकी जानकारी के लिए गंगा भी झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज, उसको पास करती है। इसके अलावा आप लोग को जानकारी है माइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज काफी हैं। माइंस में कोल माइंस हैं और आयरन ओर माइंस हैं और बाकी भी माइंस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, जो मैं आगे इलैबोरेट करूंगा। नेक्स्ट हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसा कि सबको पता है, टूरिज्म बहुत एम्प्लॉयमेंट सेंसिटिव सेक्टर है। अगर टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट होता है
तो उसके एम्प्लॉयमेंट स्पिन ऑफ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इन्वेस्टमेंट के साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जो चौथा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल स्पेशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि अभी मैडम ने आपको बताया होगा, जोहार टर्म इनकैप्सुलेट करता है हमारी फिलॉसफी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्योंकि यहां पर ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट होता है। जो चौथा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल स्पेशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि अभी मैडम ने आपको बताया होगा, जोहार टर्म इनकैप्सुलेट करता है हमारी फिलॉसफी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्योंकि यहां पर ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की और सस्टेनेबिलिटी की। तो जितने कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहें। इंप्रूवमेंट इन हैप्पीनेस कोशेंट इंपॉर्टेंट है। लोग घूमेंगे फिरेंगे, खुश रहेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर के पॉइंट से उनकी हैप्पीनेस। एंड लास्टली हमारे आर्ट, कल्चर और हेरिटेज का प्रिजर्वेशन। जैसा कि आपको जानकारी है, कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत बड़ी संख्या में झारखंड में हैं। हमारे यहाँ स्टेट में प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स और प्रिमिटिव ट्राइब्स के होने की वजह से जो उनकी एंशिएंट लैंग्वेज है, कल्चर है, वो या ट्राइबल कल्चर, वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के थीम पर ही बेस्ड है। तो वो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज की अगर थीम देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ESG थीम जो है वो काफी डोमिनेंट थीम हो गई है। नेक्स्ट लोकेशन की, मैंने कनेक्टिविटी की बात करी थी। अगर लोकेशन देखें, मैं लोकेशन से इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कोई 3 हैं तो पहला लोकेशन है, दूसरा लोकेशन है, तीसरा लोकेशन है। होटल इंडस्ट्री के लिए स्पेशली ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो बेसिकली एक ही है। झारखंड नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बीच में ब्रिज की तरीके से है, और इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में ब्रिज की तरीके से भी है। हमारे स्टेट के बॉर्डर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगते हैं। बड़ा नेटवर्क है, उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्योंकि मिनरल्स काफी समय से रहे हैं, तो जहां मिनरल्स रहे हैं वहां रेल नेटवर्क इफेक्टिव ब्रिटिशर्स के समय से था। तो रेल कनेक्टिविटी स्पेशली अगर आप देखें तो दिल्ली हावड़ा की जो ग्रैंड कॉर्ड है, वी हैव रांची एयरपोर्ट, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसी 12 तारीख को देवघर में एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट किया गया। ट्रेन्स हैं वो पास होती हैं, उसके अलावा तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं, मैंने सिर्फ की रूट्स की बात कर रहा हूं। रोड कनेक्टिविटी देखें तो लगभग 30 नेशनल हाईवेज या उनके सेक्शंस हमारे स्टेट से पास होते हैं, और इंक्लूडिंग ग्रैंड ट्रंक रोड। एरियल कनेक्टिविटी की बात करें, वी हैव रांची एयरपोर्ट, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसी 12 तारीख को देवघर में एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा रिवर कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, गंगा साहेबगंज से पास होती है,
पूरे स्टेट से कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि साहिबगंज से पास होती है तो रिवर कनेक्टिविटी भी है। नेक्स्ट अगर टूरिज्म की बात करें तो कई सारे फेसेट्स पे ध्यान जाता है। एक है उसमें से रिलीजियस टूरिज्म। मैंने रिलीजियस टूरिज्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे रीजनल लेवल पे हो और चाहे इंट्रा स्टेट हो, इसके लिए ट्रैवल करते हैं। हम लोग के स्टेट में बहुत सारी साइट्स हैं, सब एन्यूमरेट करना संभव नहीं है। कुछ साइट्स हमने आपके सामने रखी हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, भगवान शिव का मंदिर है। अभी 12th को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ पे पूजा करी थी। बोकारो में लुगुबुरु ट्राइबल्स के लिए, स्पेशली संथाल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट मानी जाती है और हर साल बहुत बड़े नंबर्स में पूरे कंट्री से आते हैं। गिरिडीह में पारसनाथ है जो जैन कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट है। चतरा में एक लोकेशन है इटखोरी, वहां पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों के इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स एक ही लोकेशन पर हैं। इसके अलावा रामगढ़ में छिन्नमस्तिका टेम्पल है। एंड अगेन मैं फिर कहना चाहूंगा कि और भी बहुत सारी साइट्स हैं, मैंने सब यहां पे नाम नहीं लिया है। दैट डज नॉट मीन कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इको टूरिज्म, अब मैंने शुरुआत में बताया लगभग 30% एरिया हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये कई मायने में स्ट्रेंथ है, कुछ चैलेंजेस भी इसकी वजह से होते हैं डेवलपमेंट में, बट एट द सेम टाइम करंट पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको स्ट्रेंथ की तरीके से लेते हैं। स्ट्रेंथ की तरीके से इसलिए लेते हैं क्योंकि पेड़ की उपस्थिति से हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और दिल्ली वालों को ये बताने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं कि ऑक्सीजन लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ हर कमरे में जब लोग इंडिविजुअली एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। अगर देखें तो हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क है और कई सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। इनको हम लोग लीवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं इको टूरिज्म के डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। इसी से रिलेटेड जैसे इको टूरिज्म के और भी कंपोनेंट्स हैं अदर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो है नेचुरल ज्योग्राफी, जैसे नेतरहाट के हिल्स हैं। वेस्ट सिंहभूम में सारंडा के फॉरेस्ट हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन एशिया। उसके अलावा नेचुरल टोपोग्राफी की वजह से, क्योंकि एल्टीट्यूड का डिफरेंस कई स्पॉट पे मिलता है, तो वाटरफॉल्स आते हैं हमारे यहाँ। कई सारे वाटरफॉल्स हैं जिसमें से कुछ आपके सामने रखे गए हैं नाम। वाटरफॉल्स लार्जली क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो रेनफेड रिवर्स हैं, तो सीजनैलिटी वाटरफॉल्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैंने पूर्व में क्लियर करा था, टोपोग्राफी की वजह से हम लोग के यहाँ कई सारे डैम्स बने। डैम्स की वजह से बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पतरातू है, सरायकेला खरसवां में चांडिल है, धनबाद में मैथन डैम है, दुमका में मासनझोर है जो कि वेस्ट बंगाल से लगता है, कोडरमा में तिलैया है। अगर आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, दिस इज द लोकेशन जो कि परहैप्स शोले मूवी से झुमरी तिलैया के फॉर्म में नाम में फेमस हुआ है। फिर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में तेनूघाट है, रांची में गेतल सूद है, फिर साहिबगंज में गेंजेस में बताई चुका हूं। नेक्स्ट तो रिलीजियस टूरिज्म और इको टूरिज्म, ये तो दो इंपॉर्टेंट बड़े पिलर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ हेरिटेज टूरिज्म भी है हमारे यहाँ। कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं
कुछ प्री हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जैसे साहिबगंज में फॉसिल पार्क है, कुछ मेगालिथ्स भी हैं हमारे यहाँ, जैसे चोकाहातू में है, गुमला में है, तो ये प्री हिस्टोरिक हो गया। फिर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे दुमका में एक ही गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, मलूटी में, उसके अलावा राजमहल में जामी मस्जिद है। फिर रांची में एक लोकेशन है मखलूसकीगंज, जहां पर फर्स्ट एंग्लो इंडियन सेटलमेंट है, तो वहां पर अभी भी वो ब्रिटिशर्स के समय के पुराने जो क्विंट बंगलोज होते थे वो अभी भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट। अगर कल्चरल टूरिज्म की बात करें तो वैसे कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा सेलिब्रेट होते हैं और उसका पब्लिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। जैसे ट्राइबल्स का फेस्टिवल है सरहुल, फेस्टिविटीज़ आपको सड़क पे देखने को मिलेंगी। सेम है दुर्गा पूजा, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। जैसे जिस तरीके से आपको वेस्ट बंगाल में या कलकत्ता में देखने को मिलती हैं फेस्टिविटीज़, उससे थोड़ा सा छोटे स्केल पर लेकिन उसी प्रकार फेस्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। सिमिलरली मार्च में रामनवमी फेस्टिविटीज़ दिखती हैं। तो ये फेस्टिविटीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने घर आते हैं और लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सड़क पे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट गेट टुगेदर है ये। और जो कल्चरल मैनिफेस्टेशन के अलग फॉर्म्स हैं, जैसे पेंटिंग, सोराई पेंटिंग्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो टसर सिल्क का प्रोडक्शन है। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर भी डिस्प्ले में हैं, मुझे लगता है कुछ आपके फोल्डर्स में भी हैं। फिर डांस के फॉर्म में भी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। हम लोग के यहाँ के पाइका और छऊ वर्ल्ड फेमस डांस हैं, वो भी है। नेक्स्ट। बिजनेस ट्रैवल स्लाइड थोड़ा प्रेजेंटेशन में बात की तरफ रखी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस की वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ये रूटीन ट्रैवल है, रोज चल रहा है, आपको जानकारी है। कोल, आयरन ओर और यूरेनियम माइनिंग, आप कई लोगों को नहीं जानकारी होगी कि झारखंड में यूरेनियम माइनिंग भी होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनली पीएसयू जो यूरेनियम माइनिंग करती है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड में ही हेडक्वार्टर्ड है। और यूरेनियम माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर परमिटेड नहीं है, एक्सक्लूसिवली फॉर पीएसयू है। उसके अलावा बाकी तो आपको जानकारी है। आयरन ओर माइनिंग है, टाटा स्टील लिमिटेड का है जमशेदपुर में, टाटा मोटर्स है। स्टील अथॉरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट बोकारो स्टील है। फिर हिंडाल्को भी झारखंड में उपस्थित है, ग्रासिम का भी प्लांट है। टाटा मोटर्स और स्टील की वजह से वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर ऑटो एंसिलरीज हैं। इनके अलावा और भी कई सेंट्रल पीएसयूज हैं, एचईसी है, मिकॉन है, और भी हैं। रेलवेज का बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, सारे नहीं गिनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गिनाए हैं। इन सब की वजह से एक रेगुलर बिजनेस ट्रैवल भी होता है जो कि अपने आप में अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट। अब स्ट्रैटेजी टूरिज्म प्रमोशन की क्या है, जिसके बेसिस पर फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लियर करे। स्ट्रैटेजी है बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिसके लिए इंसेंटिव्स की बात आती है, वो मैं आगे बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द सेंस आपका कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स में आपने देखा इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा रोड पे स्टेट गवर्नमेंट के काफी सीरियस इन्वेस्टमेंट्स, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंचने में टूरिस्ट को सहूलियत रहती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट
in the form of infrastructure development as well as crowding in the private investment in hospitality. अभी public investment हम लोग के limited scale पे सही, लेकिन hospitality units पे भी हैं, जिनको कि आगे हम लोग visualize करते हैं कि public private participation उसमें होगा. फिर information dissemination, community participation, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सारा का सारा डेवलपमेंट इनइक्विटेबल डेवलपमेंट होगा और सस्टेनेबल नहीं होगा. तो हम लोग को बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है. हमें सारा मतलब जो हम लोग के डेवलपमेंट होगा वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हम लोग विजुलाइज करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग. नेक्स्ट. फिस्कल इंसेंटिव्स की अब हम बात करना चाहेंगे, जो इस पॉलिसी में हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं. जो पहला पॉइंट फीचर है इसका कि सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ये सारे फिस्कल इंसेंटिव्स रूट होंगे. यहाँ पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री जितेंद्र कुमार सिंह हैं. ये काफी क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं इस इनिशिएटिव को कंसेप्चुअलाइज करने में. ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स का फ्लो है वो सिंगल विंडो के थ्रू है. तो टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि आपको मतलब किसी भी इन्वेस्टर को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से इंटरफेस ना करना पड़े और सिंगल विंडो के थ्रू ही ये जितने तरीके के इंसेंटिव्स हैं वो हम लोग रूट कर सकें और भी इनके अलावा जितने तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो सके. इंसेंटिव्स के डिटेल्स पॉलिसी बुक में दे रखे हैं. वो उसके कुछ हमने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यहां पे रखी हैं. पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. ये 10 करोड़ रुपए तक की होगी. रेंजेस बिटवीन 20 to 25% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट. फिर रीइंबर्समेंट है जीएसटी का, नेट जीएसटी पेड का एट द रेट ऑफ 75% फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. फिर होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रीइंबर्समेंट है. स्टैम्प ड्यूटी का रीइंबर्समेंट है. कैप्टिव पावर जनरेशन की सब्सिडी है. फिर इंटरेस्ट सब्सिडी है एट द रेट ऑफ 50% अप टू अ लिमिट ऑफ 20 lakhs. और इन विद इन दीज डिफरेंट इंसेंटिव्स स्पेशल प्रोविजंस हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन, दिव्यांग और एक सर्विसमैन के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. ये सारे इंसेंटिव्स केवल फिस्कल इंसेंटिव से ही हम लोग विजुलाइज करते हैं कि सारा टूरिज्म प्रमोशन नहीं होना है. उसके अलावा और भी चीजें हम लोग के पाइपलाइन में हैं. फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इकोनॉमिक जोन की कंसेप्ट है. ये सारे डिटेल्स हम लोग ने पॉलिसी में हैं, उसमें अगर आप देखना चाहेंगे. टूरिज्म इकोनॉमिक जोन्स पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की कंसेप्ट है, जहां पर कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके. फिर टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की कंसेप्ट है जो कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए कंसेप्चुअलाइज है. टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोडल बॉडी की कंसेप्ट है. हमारे यहाँ ऑलरेडी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एग्जिस्टेंस में, उसको स्ट्रेंथन करना है. उसके अलावा टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कंसेप्ट विजुलाइज की गई है, जिससे कि टूरिस्ट्स को हम लोग सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकें. तो ये एक समरी है पॉलिसी की. बाकी पॉलिसी के डिटेल्स हैं. ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले ही कहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्पेशली सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम लोग के की ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू हम लोग चाह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोशन हो. और यदि आप सबका सहयोग रहा और बाकी इन्वेस्टर्स का सहयोग रहा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, तो हम लोग को निश्चित विश्वास है
कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव में सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Kaushal, for that comprehensive overview of the State Tourism Policy 2021. And ladies and gentlemen, it's time for us to now unveil the Jharkhand Tourism Policy 2021. I request the Honorable Chief Minister and other dignitaries to now kindly officially unveil the Jharkhand Tourism Policy 2021. Thank you. With that, we now move on to our next segment, which is the launch of the promo series of the postcard and other dignitaries. Thank you. With that, we now move on to our next segment, which is the launch of the promo series of the Postcards from Jharkhand, a National Geographic television show on Jharkhand, which will be releasing today, the 23rd of July, 2022. The film delves into the state's vibrant culture, its distinct traditions, heritage temples, and beautiful landscapes, and that aim to make Jharkhand a traveler's paradise. Now, the series comprises of 4 films and is a collaboration between the government of Jharkhand and the National Geographic, and the series can be watched on the website and also on the National Geographic India. And we'll now show you the promos of these films. There is something in Jharkhand for everyone. Welcome to a feast of experiences for your body and soul. I've carried a memory of this place in me from my childhood. From old world charms to new age excitement. From spectacular natural wonders to warm, friendly people. Thank you. Tune into nature with dense forests and wildlife. कान मिला रहे ना, तो ये नॉर्मल है. जैसे ये कान खड़े कर लेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, पूंछ सीधा कर लेंगे तो. Make magnificent memories as you leave a piece of your heart in Jharkhand. Postcards from Jharkhand on National Geographic. झारखंड की खूबसूरती का जवाब नहीं, इसके अद्भुत नजारे, शानदार विरासत और एक अतरंगी संस्कृति. Johar. अरे it fits perfectly. Thank you. Full workout हो गया. Ready? Postcards from Jharkhand, National Geographic पर. The land of forests, nature's hidden jewel. Jharkhand is a traveler's paradise. Get ready for a sensory extravaganza, complete with ancient traditions and world-class lifestyles, breathtaking scenic beauties and heart-stopping adventure. Thousands of years of faith preserved in magnificent temples, marvels of new age infrastructure, Can I resist? an abundance of prehistoric heritage flowing through generations. I've heard so much about the expertise behind this vibrant Sorai art. Discover new horizons. Discover yourself. Discover Jharkhand. Postcards from Jharkhand on National Geographic.
Open your mind to a whole new world. Explore mystic wonders of nature in the forests. तो मुझे देख के आपको लग रहा है कि मुझे इजी वाला देना चाहिए. Uncover secrets hidden deep inside the earth. And I'd always heard of this ancient Shiv Mandir which is inside a cave. Experience the rich cultural legacy. मुझे बताइए इस डांस फॉर्म के बारे में, इस आर्ट फॉर्म के बारे में. Experience the blend of vibrant warmth and stunning creations. अरे it fits perfectly. Jharkhand, let it become a part of you. Postcards from Jharkhand on National Geographic. Jharkhand will mesmerize you with majestic nature, rich heritage and colorful culture. Johar. अरे it fits perfectly. Full workout हो गया. Postcards from Jharkhand on National Geographic. The promo series, Postcards from Jharkhand, a collaboration, like I said, between the government of Jharkhand and the National Geographic Television. And it's now time for us to move on, and I'll request, the Development Commissioner, Government of Jharkhand, Shri Arun Kumar Singh, to kindly now address the gathering. Let's all welcome him with a round of applause. झारखंड टूरिज्म पॉलिसी के अनावरण के अवसर पर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव इक्का साहब, रेजिडेंट कमिश्नर मीना साहब, मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, पर्यटन विभाग के सचिव अमिताभ जी, उद्योग के निदेशक जितेंद्र जी, हमारे पर्यटन की डायरेक्टर अंजलि जी, उपस्थित इस सभागार में हमारे मित्रों, कोविड के कहर के बाद, हालांकि वो अभी तक पूरा समाप्त नहीं हुआ है, यह टूरिज्म पॉलिसी एक राहत की सांस लेकर आई है और आपके लिए ऐसे एवेन्यूज इस पॉलिसी के माध्यम से पेश किए गए हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने पेश की गई हैं जिनके माध्यम से हम देश के विदेश के लोगों को टूरिज्म का एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो अब तक बहुत अधिक एक्सप्लोर नहीं हुआ, अनएक्सप्लोर्ड, and the presentation which was made by Amitabh regarding the opportunities that are available in Jharkhand. He mentioned about mining tourism. यूरेनियम की खदानें केवल झारखंड में है, गोल्ड माइन झारखंड में है, कॉपर माइन झारखंड में है, कोल माइन झारखंड में है, बॉक्साइट माइन झारखंड में है, आयरन ओर माइन झारखंड में है, हीरा झारखंड में है, एस्बेस्टस झारखंड में है। झारखंड में साहेबगंज है जहां पर राजा मानसिंह
अकबर के समय, इफ यू रिमेंबर, राजा मानसिंह व्हेन ही इन्वेडेड वेस्ट बंगाल, तो ही वेंट थ्रू द कोर्स ऑफ गंगा रिवर और उन्होंने अपना कैंप लगाया था, इसको साहेबगंज इसलिए नाम बोलते हैं। वहीं पर एक जगह है राजमहल, और उन्हीं की याद में बिहार, बंगाल और झारखंड के 3 जिले, बीरभूम, मानभूम और सिंहभूम, वीर मान सिंह, तो इस प्रकार की धरोहरों को संजोए हुए है। फॉसिल, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फॉसिल। फॉसिल इंडिया में कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि दाल बिल्कुल दाल जैसी लग रही है, कलर भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन वो पत्थर हो चुकी है। चावल चावल जैसा लग रहा है, रंग भी वैसा है, ले लीजिए चावल खाइए, लेकिन दैट इज स्टोन। पेड़ पौधे पत्थर हो चुके हैं। तो ऐसी भी एक साइट हमारे साहेबगंज में है, जिसे फॉसिल पार्क के रूप में विकसित किया गया, जहां पे पर्यटन की अपार संभावना है, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों के आने की। रिलीजियस टूरिज्म से देखें तो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में हैं, जिनमें देवघर में एक ज्योतिर्लिंग है। हमारे जैन भाइयों के लिए पारसनाथ एक बहुत ही पवित्र स्थल है, तो पारसनाथ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा छिन्नमस्तिके का मंदिर रजरप्पा में है, इटखोरी में भद्रकाली, अंजन धाम में हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का जन्म कहते हैं, वहीं झारखंड में हुआ। राज्य का 30% एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, 30%, एंड वी हैव सो मच स्कोप फॉर इको टूरिज्म। पीपल कैन जस्ट गो एंड रिलैक्स इन द फॉरेस्ट, and there is no issue of safety and security. It is all taken care of. The infrastructure is world class. If you travel in Jharkhand, the roads are so good, and now we have 2 airports in Jharkhand which are operating flights, and the Devghar airport, which has been recently inaugurated by Honorable Prime Minister, तो वो देवघर का एयरपोर्ट पूरा डायमेंशन खोल देता है संथाल परगना का, रिलीजियस टूरिज्म का, साहेबगंज का, उसके आसपास धनबाद। एडवेंचर टूरिज्म की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे पास जलाशय हैं, फॉल्स हैं, फॉरेस्ट में ट्रैकिंग कर लें, तो अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं। और I was tourism secretary in 2008, 14 years back. तो मैं बहुत से चेहरे, पुराने चेहरे भी होंगे आप में से, उनको पहचान रहा हूँ। बहुत से हम लोग पार्टिसिपेशन किया। मेरा आपसे ही आह्वान है कि आप झारखंड आएं, खुद अपनी आंखों से देखें जो हम लोग कह रहे हैं, खुद एसेस करें, एंड द इंसेंटिव्स व्हिच हैव बीन ऑफर्ड, दोज इंसेंटिव्स, all the tourism policy of the country have been compared, और उनकी तुलना के उपरांत जो बेस्ट पॉसिबल इंसेंटिव था वो झारखंड सरकार ने ऑफर किया है, चाहे वो कैपिटल इंसेंटिव हो, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, चाहे वो जीएसटी इंसेंटिव हो। तो विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स हमने ऑफर किए हैं। कैसे उसको साधारण तरीके से, सरल तरीके से आपको उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भी सिंगल विंडो का कंसेप्ट है, और हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, बिकॉज उनके थ्रू इंडस्ट्रीज का ये जो इंसेंटिव है, टूरिज्म को इंडस्ट्री हमने डिक्लेयर किया, और ये इंसेंटिव कैसे आसानी से मिल सके, कैसे आपको जमीन आसानी से मिल सके, इस दिशा में ये पॉलिसी है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, काफी देर से आप लोग हैं यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस आयोजन, हालांकि बहुत से चेहरे, थोड़े मुस्कुराहट मुझे नजर नहीं आ रही है, तो प्लीज फील रिलैक्स, बिकॉज टूरिज्म इज बेसिकली टू रिलैक्स, योर माइंड शुड बी रिलैक्स, एंड प्लीज यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्सो आफ्टर दिस, तो वट एवर डाउट्स यू हैव, विल रिजॉल्व दो डाउट्स। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि झारखंड खुद आए, वहां भी हम लोग इस प्रकार का सम्मेलन कराएंगे, आपको फैम टूर्स भी कराएंगे, ताकि यू कैन सी, एंड सीइंग इज बिलीविंग। आई वेलकम यू ऑल टू झारखंड। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।
Thank you, Shri Singh, for talking to all of us here. And with that, I'd like to now invite the Honorable Chief Minister Jharkhand, Shri Hemant Soren, to deliver the keynote address. Let's all welcome him, everybody, with a round of applause once again. आज यहां देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को सार्वजनिक तौर पर आपके बीच में रखने के इस क्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल जी, गृह सचिव हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, सचिव हमारे विनय चौबे जी, राज्य के सभी हमारे पदाधिकारीगण और विशेष तौर पर यहां आए हुए आप सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आज के इस अवसर पर यहां उपस्थिति के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से आज इस पॉलिसी के संदर्भ में बता दिया गया है। आज उसकी पुस्तक का भी अनावरण हुआ है, वेबसाइट भी इसकी बनी हुई है जिसके माध्यम से पूरी जानकारी अब तक जाएगी। मैं मोटे मोटे तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड को अब तक जो देखने का नजरिया रहा है, मुझे लगता है आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही और वो नजरिया रहा है मात्र खनिज संपदाओं को लेकर। हमारे स्टेट में लगभग 42% खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के। और देश आजादी से पहले से ही हमारे झारखंड प्रदेश में खनिजों का उत्खनन होता रहा है। इसलिए इसको आमतौर पर खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य भी कहा जाता है। हमारे झारखंड प्रदेश को बने हुए 20 साल हो गए और इस राज्य का बनने के पीछे भी एक बहुत लंबा इतिहास है। 30-40 सालों का संघर्ष की उपज ये झारखंड प्रदेश है, क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल राज्य है और जबकि ये खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य है, फिर भी वहां के लोग
और झारखंड प्रदेश का पिछड़ापन भी किसी से छुपा नहीं है। और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए कि राज्य अलग किया जाएगा, यहां के लोगों का विकास होगा, इस राज्य का विकास होगा, यहां के लोगों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक ताकतें बढ़ेंगी। लेकिन कमोवेश राज्य अलग होने से पहले भी ये देखने का बहुत अच्छा मौका नहीं मिला और विगत 20 वर्षों में भी ऐसा बहुत सुखद अनुभव, एहसास करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है अब तक झारखंड को देखने का नजरिया जो रहा है, वो नजरिया रहा है एक्सट्रैक्शन का, खनन का। और अब ये सरकार झारखंड को देखने का नजरिया अट्रैक्शन की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। और इसी का छोटा सा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन आपके समक्ष रखा है। रिसर्च स्टडी के लिए भी मुझे लगता है झारखंड प्रदेश, दुनिया की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया मैंने नहीं घूमी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस देश में अनोखे अनोखे चीजें हैं। अभी अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि फॉसिल पार्क हमारे राज्य में है, जिसका हाल में ही हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जो पेड़ पत्थर बन गए, उन पेड़ों को काटकर लोगों ने क्रश करके अपने मकाने बना ली, स्टोन चिप्स के रूप में। लेकिन अवशेष हैं, उसे अभी हम लोगों ने बचाया है। इसके अलावा और जो लगभग, जो रिसर्च स्टडीज कहते हैं 15 करोड़ साल पुराना वो अवशेष हमारे राज्य में अवस्थित। इसके अलावा आप ही लोगों के माध्यम से, यहाँ के बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोगों के माध्यम से, कई खबरों के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जब दुनिया में चारों तरफ, जब ये दुनिया पानी से बना हुआ था, उस समय जब धरती की उत्पत्ति हुई, कहा जाए कि पहला बीज जो देखने को मिला वो हमारे झारखंड के सिंहभूम में मिला है, और जिसकी उम्र लगभग 350 करोड़ पुराना है, जहां आज बड़े पैमाने पर आयरन ओर पाए जाते हैं। तो इस तरीके का एक इतिहास भी हमारे राज्य के गर्भ में छुपा पड़ा है। खनन का अनुभव बहुत सुकून देने वाला नहीं रहा। वहां के आदिवासी, वहां के पिछड़े, वहां के किसान, वहां के मजदूर की जो लोगों की दशा है, आज भी थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ना जाने कारण क्या है, मैं नहीं कह सकता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे राज्य में नेतरहाट जैसा एक स्कूल है, जिस स्कूल ने देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस पैदा किए, जो राज्यों में भी है, केंद्र में भी बैठ करके नीतियां बनाते हैं, सरकार को सहयोग करते हैं।
उसके बावजूद आज नेतरहाट जैसे स्कूल को, उसके दीवारों को बचाने के लिए, उसके छत को बचाने के लिए, उसके क्लासरूम को बचाने के लिए उसके पूरे आधारभूत संरचनाओं को बचाने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है। गांव गरीब की तो बात छोड़िए, और उस नेतरहाट के गोद में ऐसे मनोरम दृश्य, जिस दृश्य को देखने के लिए आप लाखों रुपया खर्च करके अपने घरों से बाहर निकलकर पहाड़ क्षेत्रों में जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा वो नेतरहाट का जो क्षेत्र है वो उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। आज भी वहां पर ऐसे जंगलों का भरमार है, ऐसे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे वातावरण आपको एहसास होगा जो शिमला और कुल्लू मनाली में आपको एहसास दिलाता है। लेकिन इन सब चीजों को हम लोगों ने संरक्षण करने में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं या छूट से गए हैं। आज खनिज संपदा, माइंस, मिनरल्स तो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, और झारखंड के खनिज संपदा से कई राज्य जगमगा भी रहे हैं। लेकिन झारखंड आज के दिन में भी कई परेशानी, कई समस्याओं से ग्रसित है। तो हम लोगों ने ये कार्य योजना तैयार किया कि क्यों नहीं हम टूरिज्म की ओर आगे बढ़ें। और मुझे लगता है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां जहां पर टूरिस्ट लोगों का मूवमेंट है, वहां की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, लोगों को रोजगार पाने के लिए हार्डवर्ड से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं लोगों का जो मूवमेंट है, जो पूरा देश दुनिया को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, उस मोमेंटम से हमारे पूरे राज्य को भी एक नई दिशा मिलेगी। अभी हम लोग 2019 के बाद देश के वैश्विक महामारी, दुनिया के वैश्विक महामारी ने हमारे देश को भी घेरा। हम भी उसे अछूते नहीं रहे, हम भी उसके चपेट में आए। और उसमें बड़ी चिंताएं और सबसे अधिक चिंता करने वाला वर्ग रहा, क्षेत्र रहा, तो वो टूरिज्म रहा, जिसको बड़े पैमाने पर इस कोविड ने प्रभावित किया। बड़े पैमाने पर जो हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए लोग थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। ये कोविड के बीच में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद भविष्य में टूरिज्म का द्वार खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन उस समय भी हम लोग इस विषय पर चिंतन मंथन कर रहे थे, क्योंकि झारखंड नाम से अगर आप
झारखंड नाम को थोड़ा आप एलोबरेट करें तो झाड़ झंकड़ वाला ये राज, नदी पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ राज ही इसका नाम झारखंड है। खूबसूरत वादियां, अनगिनत जलप्रपात, बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर, क्या नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी है। आज उसी को एक डिस्प्ले के लिए हम लोग यहां आप लोग के समक्ष आए हैं। झारखंड को तो, झारखंड की जमीन के नीचे तो सब लोगों ने सर्वे कर लिया, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से या अलग अलग तरीके के माध्यम से, लेकिन झारखंड के खूबसूरत मनोरम दृश्य को शायद किसी ने आज तक बहुत करीब से नहीं देखा। आज मैं जिस कपड़े में हूं, ये हमारे राज में बनता है। हमारे कारीगर गांव के बनाते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, देश का सबसे बड़ा तसर उत्पादक अगर कोई है देश में तो वो झारखंड प्रदेश है। लेकिन सिल्क, या तो मद्रास का सिल्क के नाम से जाने जाएंगे या भागलपुर के सिल्क के नाम से जाने जाएंगे। थोड़ा सा चिंता विगत दिनों में हम लोगों ने किया कि आखिर राज्य को आगे बढ़ने में दिक्कत क्यों होती है, ये विकास क्यों नहीं करता, यहां के लोगों में संपन्नताएं क्यों नहीं होती। एचएससी जैसे मदर फैक्ट्री जिसने पूरे देश के बड़े बड़े उद्योग को खड़ा किया, वो आज बेचारा कैसे जिए इसकी चिंता में। और आज इस राज्य ने पूरे देश को कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक, अनेकों चीजें दी। और अभी भी अपना सीना फाड़ कर, चीर कर देश की सेवा में लगा है। लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा? कहीं ना कहीं जब इसके तह तक हम लोगों ने जाने का प्रयास किया तो मुझे बिल्कुल यह साफ तौर पर दिखा कि इस राज्य को सिर्फ एक दुधारू गाय के रूप में देखा गया, बल्कि इसके सेवा करने लोग भूल सके। आज इसी को एक प्रयास है, क्योंकि झारखंड के प्रति जो हमारा लगाव है, और हम ये गौरव से कह सकते हैं, आज जिस कार्य योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे राज्य में वाटरवेज भी हैं, एयरवेज भी हैं, रेलवेज तो हम लोगों के और यहां पर उपस्थित कई लोगों के जन्म से पहले से ही हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे राज्य को विशुद्ध रूप से देश के आर्थिक आमदनी बढ़ाने में तो इसने मदद की, लेकिन इसकी खुद की आमदनी बेचारे की घट गई। आज राज्य के हर लोगों की आमदनी बढ़े, शैक्षणिक क्षमताएं बढ़े, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा, इसके अलावा कई ऐसी चीजें। सिर्फ वहां का मिट्टी ही और वहां का सोना ही, वहां का कोयला ही, वहां का अभ्रक ही, वहां का यूरेनियम ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहां के लोग भी इतने एनर्जेटिक और इतने टैलेंटेड हैं। मैंने पहले ही कहा, नेतरहाट जैसा स्कूल है जहां देश के सबसे अधिक
IAS IPS लोगों ने को पैदा किया उसने। खेल के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में हमारा राज्य भी अपने आप में अलग है। धोनी जैसा खिलाड़ी क्रिकेट का हमारे राज्य से आता है। सलीमा टेटे जैसी लड़की जो सीमित संसाधन में, जिसको घर में 2 वक्त का खाना नहीं जुटता है, वो बच्ची आज देश में, देश का प्रतिनिधित्व दुनिया में कर रही है हॉकी के क्षेत्र में। अभी हाल में ही मिस वर्ल्ड की कंपटीशन में, क्या नाम है उस बच्ची का, क्या नाम था, रिया तिर्की। रिया तिर्की मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में के स्टेज तक पहुंची। एक ट्राइबल लड़की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ऐसी चीजों में हम कम नहीं हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं हमारी दक्षता को, हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को लोगों ने दबा के रखा, संसाधनों को हम तक नहीं पहुंचाया। बहुत खुशी होती है। आज कल ही हमारे पास 5 बच्चियों को हमने अमेरिका भेजा था। हमें कहां गए थे वो बच्चियां? अच्छा, हाँ, US गई थी हॉकी खेलने, छोटी छोटी बच्चियां। और जो प्रतिभा उस देश ने देखा, आज US काउंसिल का हमारे पास मैसेज भी और ट्वीट भी उन्होंने किया है। भविष्य में खेल के क्षेत्र में झारखंड को हर सहयोग देने के लिए वो तैयार है। तो आज कहीं ना कहीं हम अपनी प्रतिभाओं के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहे, क्योंकि ये झारखंड प्रदेश में लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं रही है। लेकिन इसी उद्देश्य और इसी लक्ष्य के साथ इस राज्य को अलग किया गया था, ताकि यहां के लोगों को, यहां के इस क्षेत्र में वास करने वाले सभी लोग के बीच में शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, आर्थिक क्षमताएं बढ़े। हमने कई बार, चूंकि हम लोग का राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से हम लोगों का दौरा होता रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर लाखों रुपए खर्च करके हमें दूसरे राज्यों में जाने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों नहीं हम इन्हीं चीजों को ऐसे डेवलप करें जो हमारे ही घर में हो और उसको देखने लोग आए। शायद पता है कि नहीं पता है, इस सभा में देश का पहला टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट अगर कहीं बना तो वो झारखंड पलामू में बना, जो आज वो उसकी स्थिति को रिवाइव करने की दिशा में आज इस टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से भी हम लोगों ने आगे बढ़ने का सोच रखा है। तीर्थ स्थल के बारे में सचिव ने क्या क्या हमारे पास एक मोटा मोटा ये आपको बता दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहीं पर हम लोगों की जो यात्रा है वो खत्म नहीं होती। यहीं पर पर्यटक के कदमें रुकेंगे ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं अगर पर्यटक की यात्रा झारखंड में प्रारंभ हुई, मैं निश्चित रूप से और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो पर्यटक के पैर कभी नहीं रुक सकते,
क्योंकि हर मोड़ पर, हर चौराहे पर हमारे अनेक ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको झारखंड की ओर आकर्षित करेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और आज इसी प्रमोशन के लिए हम लोग यहां आए हैं। बहुत सारी चीजें तो जिसमें ये हम लोग का पहला पड़ाव है, पहला कदम है। पॉलिसीज तो हमने बना दी। मैं इस मंच से एक ही बात कह के अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि आप सब लोग को आज ये पहला दिन है हमारे टूरिज्म पॉलिसी के लॉन्चिंग का। बहुत सारे सहयोग सरकार की तरफ से क्या मिलना है वो भी मोटे तौर पर बताई गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस दिशा में यहां उपस्थित या और जो सुन रहे हैं उन लोगों के बीच में बातें जा रही है। जो लोग पहली इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। Thank you very much, Honorable Chief Minister, sir. हम सभी आपके आभारी हैं, आप यहाँ आए और अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हम सभी से बातचीत की, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। Ladies and gentlemen, it is time for some audience interaction here, and we can take a maximum of 5 questions because the paucity of time. Also for the press, because this is not a press interaction, so we'd encourage questions or any comments from only stakeholders from the private sector or from the tourism sector. Kindly raise your hand, we'll get a mic to you, introduce yourself, and then whoever your question is addressed to, let us know. Yes, we'll just get you a mic. Can we please get a mic to the gentleman in the second row? Sir, आप please खड़े हो जाएं ताकि हमें पता हो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू। मेरा नाम कुमार सौरभ घोषाल, मैं रांची से ही हूँ और दिल्ली में TCI ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। सर, कोई भी राज्य टूरिज्म में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ सर। तो सर, हमारे राज्य में इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कुछ अगर प्लानिंग की गई है इस टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हम लोग के यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उसको हम लोग और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से देवघर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी तैयार हुआ है, वो जल्द ही हम लोग ऑपरेशनलाइज करेंगे। हमें लगता है कि ये 2 इंस्टीट्यूट्स कुछ समय के लिए हम लोग को HRD के मामले में सहयोग करेंगे। आगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा फिर फर्दर हम लोग इसमें प्लान करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसमें हमारा एक पैन IIT का ग्रुप है और झारखंड सरकार के जॉइंट एफर्ट से प्रेजा फाउंडेशन एक बना हुआ है। प्रेजा फाउंडेशन के माध्यम से भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काफी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उनको अभी तो विभिन्न राज्यों में उनको रोजगार मिलता है। यदि आज जितने लोग यहाँ आए हैं अगर सभी लोग अपना हमारे राज्य में निवेश करने का संकल्प ले तो उन लोगों को हमारे अपने राज्य में हम लोग नौकरी देंगे। जोहार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम आपके पास अभी आते हैं। एक क्वेश्चन पहले रो में सर आपका था। हाँ जी, सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हियर। My name is Vineet Nahata. I belong to Power Guild Treasuries. My question would be that
for the development of tourism, we are taking this gigantic initiative. What is the percentage of revenue we are expecting to earn of the state GDP? And how is it going to be beneficial in reducing the total budget deficit or the overall borrowing cost of the state? अगर आपने हम लोग का प्रेजेंटेशन देखा होगा तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग के क्लियर हैं। हम लोग का जो फोकस है वो पहला मैंने कहा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और दूसरा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो अभी हम लोग ने ये कैलकुलेशंस नहीं करे हैं कि उससे हमारे टैक्स रेवेन्यूज क्या आएंगे, वो हम लोग विजुलाइज करते हैं, सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसको बजट कैलकुलेशंस में हम लोग अभी नहीं ला रहे हैं। वो हम लोग के लिए एडिशनल बोनस होंगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो रही है, जो लार्जली प्राइवेट सेक्टर लेड इनिशिएटिव होएगा, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स आएंगे। तो हम लोग और कई सारे इसमें फिस्कल इंसेंटिव्स भी हैं। तो जो नेट कितना बैलेंस होगा, अभी हम लोग बजट्स में रेवेन्यू साइड पर उसमें अक्रूवल्स को अकाउंट फॉर नहीं कर। इनफैक्ट अगर जस्ट टू ऐड टू हिज पॉइंट, इस पॉलिसी में अगले 5 साल में कई तरह के टैक्स हॉलीडेज दिए हुए हैं। तो गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस पॉलिसी को नहीं लाई है, परंतु रोजगार और जो समावेशी विकास है जो उसके लिए हम लोग ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। Right, the gentleman at the back in the purple shirt who's been standing, sir, we'll just come to you. Can we please get him a mic very quickly? Good evening, everybody. My name is Mukesh Jaka and I'm from Viva Holidays. I do not have a question, but it's a suggestion. The tourism policy obviously is more for the tourists who are coming to the city or the state. Conference segment is a very, very, very big segment, and even in the domestic market, one conferences even take 5,000 to 10,000 people, which happens across the country in different parts every year. So if you can make as many good conference halls with good breakaways, big ones, automatically you will see a big rise in the movement, and obviously then it also adds to the wedding segment, and I think so there will be no dearth of business. This is my suggestion. Thank you. Well, thank you very much, sir. Your suggestion has been noted. Excuse me. Sorry. Sir, please. Thank you, thank you. Your point is well taken. Thank you so much. Sir, I have a suggestion again here. I think जब आप बात कर रहे हैं कि हमारा, sorry, my name is Navneet Arora. I run a travel company in Delhi. I've been in the industry 40 years now. I suggest when he's saying कि हम mining हमारा negative point है, I think that mining should actually be your positive point. Forest should be your positive point, and the wildlife revival should be the 3 positive points. These are the 3 positive points I see in the Jharkhand policy should be there. A closed mine could actually be revived as a sightseeing place for tourism. It's not there anywhere in India, at least. Your wildlife revival would be ideal for nearby states at least to start with. There are very few opportunities of forest trekking or forest camping in a very congenial atmosphere which is, full of oxygen and stuff. So these are the 3 major points. And mining, you should not give up mining. Mining should be very important, sir. It will give you a very new idea in tourism sector to revive. Thank you. Mr. Arora, your point is a very valid point, and as I had elaborated, that closed mines of coal, the uranium mines, which are still operational, but they can be taken on the FAM tour. People would be
able to appreciate how uranium looks. What is uranium? How is it the feeling when you hold uranium in your hand? Copper mines, we have copper mines which are closed. Similarly for forest areas also. And you go 1,000 feet below the surface and how one feels. So all such activities are incorporated in the policy, and we would expect people to evince interest into this, and we would be providing support for that. Thank you. Right, Just to add to what Sir had said, if you go through our policy document, we have section 16 which talks about the thrust areas. And it talks about exactly what you have just suggested. The thrust areas, adventure tourism, mining tourism, wellness tourism, amusement, water sports, weekend gateway tourism. So we have tried to incorporate almost all the suggestions that have been brought, but thank you again for your suggestions, and we will ensure that these are well taken care of. Thank you so much. अच्छा सर, एक सवाल पीछे से भी ले लिए सर। न्यूज़ 24 से ऋषिकेश बोल रहा है। ये मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, I'm sorry। जितना दिन पड़ा है पॉलिसी मेकिंग, हम लोग भी झारखंड से हैं। सर एक सवाल है कि कितना रोजगार, चूंकि कोविड के वक्त में बहुत ज्यादा रोजगार गए थे, तो इस टूरिज्म पॉलिसी से कितने रोजगार आएंगे? और दूसरा, जो वहाँ की कानून व्यवस्था और नक्सली को लेकर जो इन्वेस्टर और बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, उस पर कितना सरकार आश्वस्त कर रही है निवेशकों को इस टूरिज्म पॉलिसी में? जहाँ तक विधि व्यवस्था का प्रश्न है, तो पिछले कुछ सालों में झारखंड की विधि व्यवस्था काफी हद तक इम्प्रूव की है। और ऋषिकेश जी, जहां विधि व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, एक्चुअली मैं फिर कहूंगा कि शायद इस पॉलिसी को लेकर उत्साहित होकर हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं ये समझ सकता हूं जो अभी भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। आज प्रदेश में जो नक्सली मूवमेंट की जो बात आपके जहन में है, वो लगभग अब नहीं के बराबर है, और वो दिन दूर नहीं कि उन जंगल की वादियों में बहुत जल्द पर्यटकों की ठहाके सुनाई देंगी, गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देगी। Well, one final question now from the gentleman he's been asking. लेडीज को दीजिए। Of course, ma'am. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविता खवास है और मेरी ट्रैवल कंपनी का नाम है वॉक अराउंड इंडिया, और सर हम आर्किटेक्चरल टूर्स करवाते हैं। टॉपिक से रिलेटेड ही जिस पे बात चल रही है सर, माइनिंग एक जैसे कि बहुत ही स्कोप है, और आज से मुझे याद है 1.5 साल पहले मेरे पास यूरोप की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का स्पेशली मैसेज आया था, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस माइनिंग टूर। और इंडिया में भी कुछ स्कूल्स हैं जो माइनिंग टूर्स करवाना चाहते हैं स्कूल के बच्चों का, क्योंकि एजुकेशनल टूर्स में अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर, सेफ्टी सिक्योरिटी माइनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब हम इनबाउंड टूरिस्ट की बात करते हैं तब भी, और जब स्कूल के बच्चों की बात करते हैं तब भी। तो वो कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें या इन टूर्स को हम वर्चुअलाइज करें? थैंक यू। देखिए मैडम, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। जो माइनिंग टूरिज्म है वो अभी तक ज्यादा जगह टेक ऑफ नहीं कर पाया। उसके कई सारे रीजंस हैं। जो माइनिंग एक्ट है, रेगुलेशंस हैं, वो कई तरीके के सेफ्टी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ज्यादातर हमारी जो माइंस हैं झारखंड में, ज्यादातर वो पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल पीएसयूज हैं, वो माइनिंग करती हैं, चाहे वो कोल की हो, चाहे वो और मेजर मिनरल्स हो या कोई हो। मेजर मिनरल्स में बहुत लिमिटेड माइनिंग अभी प्राइवेट सेक्टर के पास है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के पास है वो भी विद इन द लीगल डोमेन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही है। माइनिंग टूरिज्म एकदम
निश एरिया है, एकदम नया एरिया है, जिसमें हम लोग को उन रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू वर्क करते हुए उसमें हम लोग को आगे आना होगा। और ज्यादातर सेंट्रल पीएसयूज हैं, तो आपने कहा ना कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या, एक्चुअली वो सेंट्रल पीएसयू है तो थोड़ा सा इंटर गवर्नमेंटल इशू है। इट इज, ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक सेंट्रल पीएसयू है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके उसको हम लोग को लाना होगा। लेकिन नया एरिया है, ये पहले मिस्टर अरोरा ने भी कहा, ये हम लोग के लिए चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और वी आर अवेयर ऑफ इट, और हम लोग इससे अप्राइज्ड हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। And since you are already into this business and you are having inquiries regarding mining tourism, so you can come specially to us. We'll design special tour and taking care of the safety and security norms for the tourists, locating the mines in which they are interested, and ensuring that the visits are as per the rules and regulation, and taking care of the safety of the tourists. That will be ensured. So don't worry about that, but you are most welcome to come to Jharkhand and we can explore this opportunity. Well, thank you. I apologize because of the paucity of time. We have to end this here. But of course, the team from the ministry is going to be around for the high tea. And if you have any suggestions, we'll be taking those, and you can share those with us during the high tea. I'll just ask. Ladies and gentlemen, the program is still not over. Can I request you to kindly be seated? I only said that the interaction is over. We'll just have a formal vote of thanks. Before that, we'd like to thank the Honorable Chief Minister for joining us this evening. And with that, I'll now request the Honorable Secretary, Department of Tourism, once again, Dr. Amitabh Kaushal, to present these little mementos which are a token of our gratitude. हमारी तरफ से हमारा आभार व्यक्त करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अमिताभ कौशल से कि वो इन मोमेंटोस को प्रेजेंट करें। शुरुआत चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। Requesting the audience to kindly remain seated. The program is not over yet. We will, I'm sure everyone needs a cup of tea. बस अब कुछ ही क्षणों में हम सब चाय पी सकते हैं. Thank you very much. I request Dr. Kaushal to also present a memento to Shri Arun Kumar Singh, the Honorable Development Commissioner, Government of Jharkhand. One to Shri Rajiv Arunekar. To Shri Masram Meena. And to Shri Vinay Kumar Chaube. And I'll request Srimati Anjali Yadav to kindly present a memento and thank Shri Jitendra Kumar Singh. Thank you so much. उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद प्रस्ताव देना मेरे सौभाग्य की बात है जिन्होंने इस पर्यटन नीति लॉन्च कार्यक्रम में आज भाग लिया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञानवर्धक संबोधन एवं विचारों की नवीनता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज इस समारोह में उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर की।
मैं अपने आदरणीय वक्ता श्री अरुण कुमार सिंह, विकास आयुक्त के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी सभी गतिविधियों में मार्गदर्शन दिया एवं हमेशा सही तरीके से काम करने के लिए हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं। मैं अपने वरीय अधिकारी तथा मेंटर्स को भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव रुनिक्का जी, रेजिडेंट कमिश्नर श्री मस्त राम मीना, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे, पर्यटन सचिव श्री अमिताभ कौशल, निदेशक उद्योग श्री जितेंद्र कुमार को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम किया। मैं उन सभी सम्मानित अतिथियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में गहरी दिलचस्पी ली है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाला है। हमारे भागीदारों जैसे फिक्की, आउटलुक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और अपने समर्थन के लिए सभी मीडिया हाउसेस का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।